ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ MCQ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ MCQs ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਡਬਲ ਕੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਫੋਲਡਰ ਬਣੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਅੱਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖੇ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਓਕੇ ਕੰਮ। ਚਲੋ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰ ਸਾਮਵਤ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮਵਤ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਮਵਤ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਮਵਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਮਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਮਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 78 AD ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਕਾ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਗਾ ਗੁਪਤਾ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 78 AD, ਰਾਈਟ। 78 AD ਦੇ ਕਰੀਬ। ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 78 AD, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਗਭਗ 320 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 522 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 622 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂ 622 ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ ਹੈ ਇਹ 1582 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ 78 AD ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ SSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 1997 ਜਾਂ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸਾਕਾ, ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ, ਹਿਜਰੀ, ਗੁਪਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਇੱਥੇ, ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ ਇੱਥੇ, ਹਿਜਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਫਿਰ ਹਿਜਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਲੰਡਰ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰਿਗੋਰੀਅਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨਸਰ PPSC ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫ ਗਾਰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਹੋਮ ਆਫ ਗਾਰਗੀ ਮੈਤਰੀ ਐਂਡ ਕਪਿਲਾ ਵਾਜ਼ ਐਟ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗਾਰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਤਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਪਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੀ। ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲੋਸਫਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਿਥਿਲਾ। ਰਾਈਟ, ਮਿਥਿਲਾ। ਇਹ ਮਿਥਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਆਫ ਮਨੂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਆਫ ਮਨੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਮਨੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਤਾਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਪੋਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥਿਲਾ, ਮਿਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਥਿਲਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਮਿਥੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੰਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦ ਹੋਮ ਆਫ ਗਾਰਗੀ ਮੈਤਰੇ ਐਂਡ ਕਪਿਲਾ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਮਿਥਿਲਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which area of India was known as Avantika in ancient times? Which area of India was known as Avantika? Okay, हाँ ठीक है। अवंतिका ਇਹ ਹੈਗਾ मध्य प्रदेश। राइट है, मध्य प्रदेश ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मालवा रीजन है ना। मालवा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, मालवा एक्सप्रेस मध्य प्रदेश साइड है। राइट, सो विच एरिया ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वाज ऑल्सो नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स, मालवा यानी मध्य प्रदेश। राइट, सो मध्य प्रदेश भी याद रख सकते हैं, MP। राइट, सो मालवा इज द राइट आंसर। देखो हुण निक्के निक्के क्वेश्चन है जिहड़े कि थ्योरी दे विच नहीं आउंदे। राइट, थ्योरी दे विच इन्नियां छोटी छोटी चीज़ां रह जांदियां, इसे करके इन्हां चीज़ां नूं इंपॉर्टेंट पढ़ना। जिवें हुण जियोग्राफी है, काफ़ी स्टूडेंट जो मैंने पुछदा कि सर जियोग्राफी असीं जिवें पटवारी एग्जाम हो गया या PSPCL हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया तो वो जियोग्राफी का पोर्शन बहुत घट आऊगा। मैं इसे करके उन्होंने कह देना कि भाई MCQ कर जो, पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन वधिया ढंग दे नाल कर जो, ताकि थोड़ा बहुत तुहानूं आइडिया हो जाए। जिवें तुहानूं मैं करवा रहा, जे तुसीं एंशिएंट हिस्टरी नहीं भी पढ़ी तां भी तुहानूं ये क्वेश्चन उस तो बाद याद रहणगे, एंड क्वेश्चन तुसीं ला आओगे, गारंटी है। राइट, ये तरीका हुंदा, पर हरेक सबजैक्ट नाल एवें नहीं करना, क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा आउंदी है, हिस्टरी बहुत ज़्यादा आउंदी है, तो उन्होंने डिटेल दे विच ज़्यादा पढ़ना गा। जिवें मडीवल जिहड़ी मैं मडीवल ते मॉडर्न हिस्टरी की गल कर रहा। राइट, चलो खैर। तो नैक्सट क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज एगलिटेरियन की होंदा भला, जड़े जिथे ऐ कह लो भी सारे बराबर नाल रहिंदे, बराबर समानता नाल रहिंदे, कोई भी कास्टिसिज्म नहीं हैगा। हालांकि जो हड़प्पन सभ्यता सी जिहड़ी सी सब तो वधिया सभ्यता मन्नी जाती है, एंड इत्थे बहुत लोग एक दूसरे नाल मिल वर्तन रहिंदे सी। यानी इत्थे कास्ट बेस्ड, कलर बेस्ड, स्लेव लेबर बेस्ड जिहड़ा आपां करदे जातिवाद कुछ भी वो इत्थे नहीं मिलता। राइट, हड़प्पन्स दे विच। तो इसे करके द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज एगलिटेरियन, फेयरली यानी कि एक दूसरे नाल फेयरली एगलिटेरियन यानी कि इक्वल वर्तारा करते सी। सो इज द राइट आंसर। कितना सौखा क्वेश्चन है, कितना वधिया क्वेश्चन है। इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं आम तौर पर देखने को मिलते हैं। राइट हो गया। चलो, which of the following Vedas provides information about the civilization of the early Vedic age? Civilization of the early Vedic age की है, इन्हां दे विचों किहड़ा वेद है जिहड़ा इन्फॉर्मेशन दिंदा गा civilization of the early Vedic age? civilization of early Vedic age तां कौन दऊगा जिहड़ा सब तो ओल्ड होऊगा? सब तो ओल्डेस्ट इन्हां दे विचों किहड़ा गा? ऋग्वेद। राइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऋग्वेदा इज द राइट आंसर, ओल्डेस्ट। राइट हो गया, 4 हो गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। राइट हो गया। चलो,
द यूनीवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट गुप्ता एरा दे विच यूनीवर्सिटी किहड़ी है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनीवर्सिटी नालंदा बिहार दे विच, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो नालंदा दे विच तुसीं ऐ कह सकते हो भी लर्निंग ऑफ बुद्धिज़म के बारे पढ़ाया जाता सी ज़्यादातर, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता होंदा, इन्हां क्वेश्चनों के विच भी पक्का क्वेश्चन होऊगा, राइट। सो पोस्ट गुप्ता एरा नालंदा यूनीवर्सिटी फेमस, राइट। बाणभट्ट जिहड़ा कोट पोइट सीगा ओह किहदे राज दे विच सीगा? ऑफ विच एंपायर? बाणभट्ट जिन्हें हर्षचित्रा लिखी है। हर्षचित्रा हुण नाम तो ही पता लग गया होगा किहदी बायोग्राफी है यह हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, हर्षचित्र। सो हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। बस इन्नी ही डिटेल होंदी है, इत्थों क्वेश्चन आ जाऊगा हर्षचित्र किने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। इन्ना ही क्वेश्चन होंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन्ना क्वेश्चनस नूं बहुत वधिया ढंग दे नाल करियो एंड प्लीज़ इन्हां क्वेश्चनस नूं घट्टो घट्ट ना बड़ा 7-8 वारी रिपीट करना, 7-8 वारी रिपीट करना, तो उस तो बाद बस चक दो फट्टे, प्रैक्टिस ते प्रैक्टिस ते प्रैक्टिस ते प्रैक्टिस, राइट है। 7-8 वारी इहनूं रिपीट कर लेना, यानी तुसीं ऐ मान लो जो 7-8 वारी रिपीट कर लिया अखां मीच के भी आंसर आउणगे। रट्टा ना लाओ, बस रट्टा नहीं लाउणा, नाल थ्योरी जो मैं दस रहा गा वो पता होनी चाहिए है, रट्टा नहीं लाउणा। The first Indian ruler who established the supremacy of the Indian Navy in the Arabian Sea। अरेबियन सी वाले यानी कि उत्थे सुप्रीमेसी हुई है, यानी किने सब तो पहला एस्टैबलिश सुप्रीमेसी ऑफ दी पावर दिखाई है, जिन्हें कहने का मतलब कि इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी विद इंडियन नेवी की पावर जिहड़ी हैगी सुप्रीमेसी किने एस्टैबलिश की है? किहड़ा पहला इंडियन रूलर सी? राजा फर्स्ट जिहड़ा कि चोला डायनेस्टी का रूलर सी, चोला डायनेस्टी का रूलर सी। तो इंडियन नेवी की सुपरमेसी यानी कि नेवी फौज आ जी, यानी कि अरेबियन सी करनी, यानी कि जी एस्टैबलिश की साउथ के राजा से, राइट। तो राजा फर्स्ट, ए राजा 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 तो रेजा में समाजा गाना भी सुना हो तुसीं, हैं, ठीक है। चलो सो फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैबलिश द सुपरमेसी, ओके हो गया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करैक्ट? इन्हां दे विचों हड़प्पन सिविलाइजेशन नूं लैके किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है? हॉर्स सैक्रीफाइस वाज नोन टू दैम, काओ वाज सैक्रेड टू दैम, पशुपति वाज वेनरेटेड बाय दैम एंड द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक। आ गया ना वही कि भाई आपां नूं हड़प्पन सिविलाइजेशन बारे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता गा, ठीक है। हॉर्स सैक्रीफाइस बारे या काओ या पशुपति बारे नहीं। कल्चरल जिहड़ा इन्हां दा सीगा जनरली नॉट स्टैटिक सीगा, यानी हड़प्पन आए कदों गए कदों, जनरली नॉट स्टैटिक, यानी कि हौली हौली आए आ हौली हौली गए आ, राइट। सो ज़्यादातर यह आंसर जिहड़ा हैगा इहदा तुसीं कह सकदे भी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही इहदा बनूगा। द कल्चर वाज नॉट, जिवें आपां उहदी गल करदे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी अनडेसिफाइड है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट, उस तरीके दे नाल। तो इन्हां दा कोई एडा ज़्यादा प्रूफ नहीं मिलता। चलो, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनस वाज, फर्स्ट तीर्थंकर जैन का कौन सीगा? फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर अरिष्टनामी पार्श्वनाथ, वैसे आदिनाथ कहते सी उन्होंने, आदिनाथ यानी आदिनाथ का मतलब जिन्हें स्टार्ट किया हो। 24 सीगे तीर्थंकर, तुहानूं पता है, तो 24 ये पूछा जाता होंदा भी किन्ने तीर्थंकर सीगे, राइट है, याद रख लो। तो फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन आदिनाथ, राइट, आदिनाथ, जिन्हों आप ऋषभनाथ भी कह दें, ठीक है। आ पिया ऋषभ, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन ऋषभा, राइट। सो याद रखना, इन्हों आदिनाथ भी कहा जाता, ऋषभानाथ भी है, आदिनाथ भी, ओके हो गया। तीर्थंकर टीचर एक तरह के होंगे, जिवें आप कह दीए भी सिखिज्म के 10 गुरु उस तरीके दे नाल। 24 सीगे। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपनड बाय, द ग्रेट सिल्क रूट, बेसिकली इन्हूं सिल्क रूट तां कहा जाता सी क्योंकि वैसटर्न पार्ट साउथ पार्ट ते सॉरी ईस्ट पार्ट साउथ पार्ट ते वैसटर्न पार्ट नूं मिलाउंदा सी, मैਡੀਟੇਰੀਅਨ सी वाले नूं, ते फिर यूरोप आ जांदा सी। तो सारा रूट जिहड़ा सीगा इंडियंस वास्ते ओपन किहने कीता सीगा? ये कीता सीगा भाई कनिष्का, कनिष्का ने, राइट। सो काफ़ी यह इंपॉर्टेंट है। कनिष्का कुशान डायनेस्टी के राजा, बहुत मशहूर, राइट। इन्होंने बहुत कुछ किया भाई, याद रखियो। जिहड़ा आपां साका कैलेंडर की गल की है 78 AD,
राइट सो इन्ना दी देनी है। सो याद रखना द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपनड बाय कनिष्का। ओके हो गया। इस तो बाद आ गया द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिज्म मॉन्क्स। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਮੌਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਦ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਵਿਚ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਵਿਲੇजेस ਟੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕਸ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਵਾਹਨ ਸੀ। ਸਤਵਾਹਨ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਵਾਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਸਤਵਾਹਨਸ ਟੂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਟੂ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਥ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੁਲਭ ਸੂਤਰਾ। ਸੁਲਭ ਸੂਤਰਾ, ਸੁਲਭ ਸੂਤਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਸੁਲਭ ਸੂਤਰਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਲਭ ਸੂਤਰਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यावनिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सौखा क्वेश्चन है। कहना की चाहता यावनिका ਜਾਂ ਕਰਟੇਨ, ਕਰਟੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, यावनिका ਆਪਾਂ एंशिएंट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ यावनिका और ਕਰਟੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਦਾ ਕਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ यावनिका ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਇਹੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾय ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ? ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਸਾਕਾ ਹੀਰਾ 78 AD। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਏ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵਟ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਫ ਅਜੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੰਤਾ ਜਾਂ ਇਲੋਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੰਤਾ, ਇਲੋਰਾ ਕੇਵਸ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਬੁੱਧਾ, compassionate Buddha, right? What inspired the paintings of Ajanta? Compassionate Buddha. So पहला ही ऑप्शन, बाकी पढ़ने की लोड़ भी नहीं हैगी। Who among the following was first to invade India? First to invade India। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆਗਾ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ, 522-23 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਲਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇਨਵੇਡ ਕੀਤਾਗਾ, ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਡੇਰੀਅਸ ਫਸਟ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ओल्डेस्ट डायनेस्टी केड़ी है? तो मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कण्वा, मौर्य, राइट हो गया। ये तो सौखा है, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होंगे है, राइट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिक जीवाका चिंतामणि इन तमिल एसोसीएटेड। जिवें आपां पंजाबी दे विच पढ़दे हैं ना धार्मिक किताबां कह लो,
ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕਲਾਸਿਕ ਜੀਵਾਕਾ ਚਿੰਤਾਮਣੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ 1-2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਿਲ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਨਿਜ਼ਮ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਬਰੀਥ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ, ਤਾਂ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਆਊਗਾ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਬਰੀਥ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਬਰੀਥ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਐਟ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਧ ਗਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਗਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਟੀਚ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ। ਰਾਈਟ, ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪॉर्टेंट। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। Who were the first kings to issue gold coins in India? मैं पहला कह रहा कि इन्होंने क्वेश्चन ਨੂੰ जरूर सॉल्व करना, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ नहीं, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 15000 क्वेश्चन ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 क्वेश्चन ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ क्वेश्चन ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। Who were the first kings to issue gold coins in India? ਤਾਂ gold coins in India, Indo Greeks। बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन। राइट, सो याद रखना, इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कोइनस इशू किए सी। इन्हों की पहचान ये सी भी, यानी कि जिवें मान लो कोई ग्रीक का राजा है, तो इस राजे के जोड़े कोइन होणगे, इस राज के राज विच मान लो किसी एरिए का राजा, उत्थे जोड़े कोइन होणगे तो उत्थे इहदी फोटो होगी जां एक अलग पहचान होगी, जिस पहचान तो पता लग जू कि हाँ इत्थे इस राजे का रूल है। फिर एक इन्हां दा ही एक राजा कोई होर उत्थे अलग कोइन, तो एक इस तरह के कोइन सी बेसिकली। राइट है, तो इंडो ग्रीक्स इशू गोल्ड कोइन्स फर्स्ट। वेयर इज बृहदेश्वर टेंपल सिचुएटेड? कांची मदुरई एवी तंजौर, तमिलनाडु। राइट, सो बृहदेश्वर शिवा नूं यह डेडिकेट है, बस यह पूछा जा सकता है जे वध तो वध पूछा गया इस क्वेश्चन तो। बृहदेश्वर टेंपल सिचुएटेड तंजौर। राइट हो गया। आ गई तुहाडी जिहड़ी मैं पहलां दसी सी, वो जैनिज्म ते सीगी। आह तमिल लिटरेचर है। तमिल लिटरेचर द ग्लोरीअस बुक्स शिल्पाधिक्रम एंड मनी मेखलई आर रिलेटेड टू। तो आ जिहड़ियां हैगियां ये बुद्धिज्म दे नाल रिलेटेड है। राइट, बुद्धिज्म दे नाल रिलेटेड है, बुद्धिज्म दे नाल रिलेटेड। ठीक है, वो पहले वाली जीविका यानी कि जे तो सीगी तो जैनिज्म याद सीधा ही रख सकते हो, यह बुद्धिज्म दे नाल रिलेटेड है। राइट, सो यह याद रख लो, बेसिकली पूछा जाता होंगे भी यह रिलीजियस टैक्सट बुक है जी बेसिकली किस धर्म के नाल रिलेट करती है। हू एस्टैबलिश्ड महाबलीपुरम? महाबलीपुरम एस्टैबलिश्ड बाय पल्लवा, पांड्या, चोला या फिर चालुक्य? तो पल्लवा। राइट, सो पल्लवा डायनेस्टी भी है। महाबलीपुरम एस्टैबलिश्ड बाय पल्लवा। राइट है, पल्लवा द्वारा यानी कि महाबलीपुरम। बस इन्ना की है, नाल थोड़ी जी डिटेल यदि पल्लवा डायनेस्टी की ही पढ़ लियो। राइट है, चलो जे तुसी जीके की बुक वगैरह ये नहीं मंगाई, हालांकि जोड़े बाकी कोर्स है जिमें एक्साइज कोर्स हो गया जां एक्साइज इंस्पैक्टर वाला कोर्स हो गया जां कह लो कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी पेपर है, हुण मैं बुक्स नाल देन लग गया। बट पटवारी वाले जां उस तो पहलां वाले पुराने ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਕ यानी कि उदों मैं बुक्स नहीं दिंदा हुंदा सी नाल, तां तुसीं बुक्स जेकर तुहाडे कोल बुक्स नहीं हैगीआं कहण दा मतलब, राइट, तो तुसीं बुक्स मंगा सकते हो। राइट, जीके की किताब है, बहुत सारे उहदे विच डिटेल दे विच तुहानूं सारा कुछ मिल जूगा। जिवें हुण पल्लवा डायनेस्टी बारे पढ़न नूं कहता तो 4-5 पॉइंट होणगे, ठीक है, जिहड़े कि इंपॉर्टेंट है वो तुहानूं बुक दे विच मिल जाणगे। तो जदों पढ़ोगे तो उत्थों क्वेश्चन ही बनणगे टू द पॉइंट। बहुत सोहनी बुक, बहुत वधिया ढंग दे नाल लिखी हुई है। राइट, मंगा सकते हो। तुहानूं मेरा नंबर पता है, ऑर्डर करोगे तो तुहाडे कोले पहुँच जू। मैं एक बारी नंबर लिख भी दिना जे नहीं पता। राइट हो गया, चलो। द साका इरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD वाज फाउंडेड बाय, देखो इको क्वेश्चन 3 टाइप्स दे नाल आया गा। राइट, सो इन्हां क्वेश्चन नूं जरूर करना गा। कनिष्का,
गंधार, आ गंधार है, इत्थे स्पैलिंग गलत लिखे होया। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन महायाना सैक्ट। महायाना सैक्ट दे विच दो तरह के सैक्ट सीगे बेसिकली, जिहदे विच आपां कहने आ कि यह बुद्धिज़म या जैनिज़म, जिहड़ा बेसिकली बुद्धिज़म यानी ऐ कह लो भी जिवें आपां गुरुशिप ते बिलीव रखते हैं, आपां कहने ना भी मूर्ति पूजा फोटो ते इमेज आपां देखते हैं, किसी फोटो ला लें आपां भगवान की, तो इमेज वरशिप दे विच जिहड़ा बिलीव रखते हैं वह महायान है, जिहड़े नहीं रखते वह हीनयान। ठीक है, हीनयान ये बहुत बारी पूछा जाता होंदा भी इन्हां दे विचों किहड़ा इमेज वरशिप ते बिलीव रखदा गा, तो महायाना एक्टर। हीनयाना तुसीं ऐ कह लो भी हीनयाना, हीनयाना तुहानूं अपने आप दे विच ही नैगेटिव वर्ड लगदा होगा हीनयाना, राइट। सो ये नहीं मानते। महायाना महागुरु, राइट, ये मानते हैं। सो महायाना सैक्टर, राइट। सो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट महायाना सैक्टर, ओके हो गया। आउट ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स एग्जीक्यूटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक डेवलपमेंट कहने का मतलब की है इस क्वेश्चन का, ये कहता भी आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एग्जीक्यूटेड। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप खोदिया, वो आपको की इंडिकेट करता कि उन्होंने कमर्शियल तो इकनॉमिक डेवलपमेंट दर्शाता, यानी कि उन्होंने इकोनॉमी दर्शाता। कहने का मतलब द पोएट्री सील्स द बोट्स द हाउसिज, तो ओबवियसली गल है सील्स आऊगा, यानी सिक्के जोड़े कोइनस वगैरह सीगे, सिक्के वगैरह उन्होंने इकोनॉमी दर्शाओगे, ओबवियसली गल है, राइट। सो यही आंसर इसका आ जाऊगा। who according to Buddhism is believed to Buddhists is believed to the next incarnation of the Gautam Buddha। बुद्धिस्ट टैक्सट दे विच लिखिया होया भी आने वाले टाइम दे विच एक आउणगे जिहड़े कि जिन्हां नूं एनलाइटनमेंट मिलूगी, जिहड़ी दुनिया दे विच दोबारा तो बुद्धिज़म का प्रचार इन्ना यानी कि जिस टाइम एंशिएंट टाइम ते सीगा दोबारा तो धर्म ज्ञान दिता जाऊगा। तो एक मनते जिवें आपां कहने हुंदे भी एक टाइम ऐसा आऊगा कि भगवान वापस आऊगा उस तरीके दे नाल, राइट। तो नैक्सट इनकारनेशन ऑफ द गौतम बुद्ध कौन आऊगा उस रूप दे विच, राइट, मैत्रेय। कौन आऊगा, मैत्रेय, राइट, मैत्रेय, राइट। सो मैत्रेय नाम होगा कहने का मतलब। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटैंपरेरी ऑफ कनिष्का। देखो कनिष्का तो किन्ने क्वेश्चन बनते हैं, राइट। कंटैंपरेरी कनिष्का दे कौन सी, तो कोर्ट पोएट सीगे, राइट। कौन कौन, नागार्जुन, अश्व घोष ते वासुमित्र। ठीक है, हाँ, नागार्जुन, अश्व घोष ते वासुमित्र, और बनता भी नहीं कोई, कालीदास नहीं, कंबन नहीं। ठीक है, नागार्जुन, अश्व घोष ते वासुमित्र, कंटैंपरेरीज ऑफ कनिष्का। बस इन्ना ही याद रखना। कनिष्का तो वैसे भी बहुत क्वेश्चन तुहानूं याद हो रहे होंगे। विच रूलर बिल्ट इन द अलोरा टेंपल, आ गया, अलोरा केव्स हो गया, अजंता केव्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, टेंपल हो गए। सो विच रूलर बिल्ट द अलोरा टेंपल्स, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, राइट। सो याद रखना, राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द अलोरा टेंपल्स। ठीक है, इन्हां टेंपल्स नूं बिल्ट किया राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। Who amongst the following also had the name Devnama Piyadasi? Who amongst the following also had the name Devnama Piyadasi? Devnama Piyadasi जिमें तुहाडा कच्चा नाम या पक्का नाम, बहुत सारी इनस्क्रिप्शन जिथे अशोका बारे लिखा होया, तो अशोका दिया इनस्क्रिप्शना दे विच एक देवनाम पियादसी मिलता, यानी कि मौर्यन किंग अशोका दा ही वो एक नाम है जिहड़ा कि इनस्क्रिप्शना दे विच मिलदा गा। मौर्यन किंग अशोका, देवनामा पियादसी भी कहा जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग, आगे अजंता पेंटिंग्स टू द सब्जेक्ट मैटर अजंता पेंटिंग्स टू बुद्धिज्म, मैं दस्या भी सी बुद्धिज्म। याद रखना, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू बुद्धिज्म। Which of the following craftsmanship was not practiced by the Aryans? Aryan पंजाब दे विच आए सब तो पहला कहंदे हुंदे आ, राइट, ठहरे यानी कि। सो which of the following craftsmanship was not practiced by the Aryans?
ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਰੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਹਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫॉलोइंग ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨ ਵਾज नॉट ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਬਾय द ਆਰੀਅਨਸ? ਬਲੈਕ ਸਮਿਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। डी ऑप्शन इज राइट बनूंगा। पॉटरी होगी, ज्वेलरी होगी, कारपेंटरी होगी, ओके काम, ब्लैक स्मिथ नहीं आऊगा। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध ते कीता भाई आक्रमण था 712 AD। ठीक है, मुहम्मद बिन कासिम कनक्योर्ड सिंध 712 AD। ठीक हो गया। सत्यमेव जयते, द वर्ड्स सत्यमेव जयते बहुत बार रिपीट होंगे। स्टेट एंबलम ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, तुम सिक्के तो देखते होंगे ना, सत्यमेव जयते लिखा होंगे, तो पैसों से भी लिखा होंगे, उत्ते अपने नोटा। सत्यमेव जयते इन द स्टेट एंबलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते आमिर खान का एक शो भी आता होंगे, याद है? सो सत्यमेव जयते इन द स्टेट एंबलम कितों लिया गया है? उपनिषद तो। उपनिषद फिलोसफी यानी कि फिलोसफिकल जी बुक्स है, यानी कि कह सकते हो उपनिषद तो लिया गया। तो उपनिषद केड़ा गा ये भी पूछा जाता होंगे, मूंड का उपनिषद तो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता, मूंड का उपनिषद तो, मूंड का उपनिषद तो। राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज? हड़प्पा, ऑब्वियस गल है, हड़प्पा। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। द फेमस रॉक कट टेंपल ऑफ कैलाश इज एट? फेमस रॉक कट कैलाश किथे है? इलोरा। राइट, इलोरा रॉक कट, राइट, टेंपल कैलाश। सो इलोरा ते अजंता, ये दोनों ही याद रखने, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट, इन्हों तो क्वेश्चन दोनों तो पूछे जाते हैं। एपीग्राफी का मीनिंग की है? एपीग्राफी जी आप इंस्क्रिप्शन है, जिमें अशोक का इंस्क्रिप्शन हो गया, यानी कि दीवार ते लिखता, खंबियां ते लिखता, फलाने ते होके रॉक्स ते लिखता, जोड़ा अपन वो लिखा मिलता वो एपीग्राफी। उन्होंने पढ़ना, उन्होंने स्टडी करनी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपीग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट फाउंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हड़प्पन साइट्स? हड़प्पन साइट्स के विच इन्हां दे विचों आपां नूं खोददे आ तो आपां नूं की नहीं मिलता, ये पूछा। हैज़ नॉट बीन फाउंड, तो ड्रेन्स एंड वैल ओके हो गया। फोर्ट रिजर्वेशन, टेंपल विद शिखर। ये टेंपल विद शिखर का मतलब की है? इस तरीके के मंदिर, तिकोणे तिकोणे मंदिर आपां नूं हड़प्पन एग्जीक्यूशन के विच नहीं मिलते। ठीक है, टेंपल विद शिखर वो नहीं मिलते आपां नूं, जां इहो जिहे मंदिर हुंदे कई तुसीं देखे होणगे। राइट, एवें जी करके। ठीक है, सो यह यानी कि आपां नूं हड़प्पन दे विच नहीं मिलते, टेंपल विद शिखर। विच अमंग द फॉलोइंग मठ, आपां हुण मठ कहने इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के नाल जिहड़ियां मठ, यानी कि जिथे मॉन्क्स, जिथे सन्यासी जाके आपदा पाठ पूजा करते सी, राइट, यानी कि ध्यान लाउंदे सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मठ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म? दखमा, चैत्य, खनक, अनगेरी। चैत्य, हाँ, चैत्य इज द राइट आंसर। राइट, सो चैत्य कहते सी उहनूं, चैत्य। चैत्य देखो हुण मैं जदों एवें पढ़ा रहा, गल्लां करदे करदे याद हो जांदी चीज़ां। जो इन्हूं 2-3 बारी रिपीट करोगे, जिवें मैं गल्लां कर रहा गा, अपने आप नाल गल्लां करोगे, आप दे टीचर बनोगे, तो उदों तुसीं स्टूडेंट वधिया बन सकते हो। तो इस करके कहते हैं भी तुसीं आप दे टीचर आप, थोनों ही पता थोड़े च कमी की है। सो अपने टीचर आप बनो, स्टूडेंट तुसीं अपने वधिया बन जाओगे, तो स्टूडेंट भी तुसीं अपने ही बनोगे, अपने ही स्टूडेंट तुसीं बहुत वधिया बनोगे। गल्लां कौड़ियां ते गल्लां सच्चियां ने। राइट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड? राइट, वर्ल्ड्स द लार्जेस्ट, जिहड़ा कि तालिबान 2001 दे विच इहनूं ढाह ढेरी भी कर दिता गया सी। राइट, तो अफगानिस्तान के बेसिकली बामिया, वर्ल्ड द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू। राइट, हो गया बुद्धा का। सो याद रखना बामियान, बामियान बहुत बारी
बहुत बारी रिपीट होंदा क्वेश्चन है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हालांकि एक मन्निया जाता कि पंजाब एग्जाम के एंशेंट हिस्टरी तो बहुत घੱਟ क्वेश्चन आते हैं, पर यह भी मन्निया जाता भी जिन्ने भी क्वेश्चन आते हैं सारे रिपीटड आते हैं। सो मैं इसे करके कहना कि क्वेश्चन तो एक भी गलत हो जाए वो तुहाडा 2.5 नंबर या 1 नंबर 1.5 नंबर जिन्ना भी होगा वो लै जाता जे नैगेटिव मार्किंग हुई, राइट। नहीं 1 नंबर तो जाऊगा ही जाऊगा। सो इन्हां क्वेश्चनस नूं बहुत बरीकी दे नाल ते बहुत वधिया ढंग दे नाल रिपीट करना, राइट। पहला लैक्चर इस करके मैं उन्होंने फ्री रखूँगा, जेकर कोई होर आसे पासे देखते बच्चे तो वो आ सकते हैं, राइट। नहीं फिर ਜਿਹੜੇ बैच ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स हैगे सो उन्होंने मैं हदायत दूँगा प्लीज़ इन्हों वार वार रिपीट करो। ਜਿਹੜੇ मैं 15,000 क्वेश्चन का फोल्डर बनाया हुआ उतो वार वार उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट। टाइम तुहाडे कोले बहुत वधिया पिया गा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921 ਜਾਂ फिर तुसीं 22 भी कह सकते, इत्थे 21 है या 22 है। 1935 42 1901 ਤੇ 1922, ठीक है। दयाराम साहनी नाम याद रखना, रख लो दयाराम साहनी, राइट हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू। इंडियन नेपोलियन किहनूं कहा जाता, बहुत सौखा क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, समुंदर गुप्त। समुंदर गुप्त नूं कहा जाता, वी स्मिथ ने कहा सी। यह कोई फिलोसफर है तकड़े जिन्हों ने कहा सी, पुछया अज तक क्वेश्चन गया नहीं भी किने कहा सी, बट याद रख लो समुंदर गुप्त। द आजीविका वर। आजीविका की सी, जिवें मैं पहला कहा सी तुहानूं बुद्धिस्ट दे विच मॉन्क जिहड़ों आपां चैत्या दे नाल रिलेट करते हैं, मठ जिथे जाके वो यानी कि आपदा ध्यान लाउंदे सी। तो इस तरह नाल एक आजीविका सी, आजीविका डायनेस्टी भी सी एक तरह की। आजीविका उन्होंने कहा जाता सीगा, ये बुद्धा दे ही कंटैंपरेरी सी, एक सैक्ट सीगा बेसिकली, जड़े ज़्यादातर यानी कि तुसीं ऐ कह लो भी मॉन्क्स ही हुंदे सी, ध्यान करते सी बस, राइट। सो सैक्ट कंटैंपरेरी टू द बुद्धा, बुद्धा दे कंटैंपरेरी सी ये, राइट हो गया। चलो द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ द टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। की है क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे। ओके क्वेश्चन की है, किधर गया, क्वेश्चन ये कहना चाहता गा भी जिहड़ा अज आपां रिलेशन देखते हैं एंशियंट टाइम ते अज दे हिंदू दे विच, हिंदुइज्म दे विच इंडस वैली कल्चर एंशियंट दा पुराने टाइमां दा ते अज दे हिंदुइज्म दे विच आपां नूं की कॉमन मिलदा। पशुपति इंद्रा एंड मदर गॉडेस, पशुपति कैंसल हो जाऊगा, देखो ये पहला क्वेश्चन आया होया, राइट। ते स्टोन ट्री एनीमल, विष्णु लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी गलत हो जू, शिवा शक्ति गलत, आह आऊगा स्टोन ट्री एंड एनीमल, यानी कि आप पत्थरों की अज भी पूजा करते हैं, राइट। ट्री दरख्तों की पूजा भी तुहानूं पता है, तो एनीमल्स पूजते हैं, राइट, जिवें गऊ माता होगी, राइट। इस तरीके दे नाल अज यानी कि कॉमन मिलता स्टोन ट्री ते एनीमल। ये आपां नूं एंशियंट हिस्टरी दे विच भी मिलता सी, कल्चर दे विच भी मिलता सी, राइट हो गया। हाउ वाज बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियंस। बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियन, बर्मा जिन्हों म्यांमार कहा जाता, एंशियंट इंडियन दे विच इहनूं आपां बेसिकली इत्थों गोल्ड कोइन बहुत निकलते सी, गोल्ड कोइन, इहनूं आपां ग्राउंड ऑफ गोल्ड कोइन भी कहा जाता सी, ग्राउंड ऑफ गोल्ड कोइन किनू भला, बर्मा नूं एंशियंट टाइम दे विच ग्राउंड ऑफ गोल्ड कोइन या अर्थ ऑफ गोल्ड कोइन, धरती कह लो कुछ कह लो, राइट। तो गोल्ड नूं की कहने आपां, स्वर्ण कहने ना, स्वर्ण जित्ते उन्हें स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि तो हुण रट्टा लाउण दी लोड़ ही नहीं, स्वर्ण भूमि। हाउ वाज बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशियंट इंडियंस, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि। विद whom is जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद whom किहदे नाल रिलेट कर दी है,
रुद्रामन भीमसारा चंद्रगुप्त टू ते गौतम पुत्र सतकर्णी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। रुद्रामन यह ना साका दा रूलर सी, साका किंग सी, साका किंग। ठीक है, जूनागढ़ रुद्रामन विद होम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। बस इनू तुसीं एवें ही याद कर लो, होर इहदे विचों ज़्यादा डिटेल कोई बन नहीं रही। राइट हो गया। नालंदा यूनीवर्सिटी वाज ए ग्रेट सेंटर लर्निंग स्पैशली बुद्धिज्म, दस्या सी आया सी बिहार। ओके हो गया, नालंदा यूनीवर्सिटी। द रथ्स ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। महाबलीपुरम आप पहले ही पढ़ के हटे। राइट, तो जोड़े रथ सीगे वो किहदे टाइम ते बनाए गए? रथ ऑफ महाबलीपुरम। एक तरह के तुसीं टैंपल कह सकते हो कि इन्हां दे टैंपल है जोड़े वो किन्हां द्वारा बनाए गए। द रथ ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो नरसिम्हा एक किंग सीगा, नरसिम्हा पल्लवा डायनेस्टी आऊगा, पल्लवाज। नरसिम्हा किंग द्वारा, नरसिम्हा ये क्वेश्चन यानी ये भी बहुत बारी पूछा जाता। नरसिम्हा इन्हां द्वारा बनाया गया सी द रथ टैंपल कह लो ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम टैंपल भी हैगा। लास्ट क्वेश्चन, हु इज हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। मैडिसन के नाल यानी कि जिन्होंने मैडिसना का रब कहा जाता है, तो इन्हों के तुसीं ऐ कह लो भी ज़्यादातर हुण जिन्हां नाल लगदा ना धनवंतरी, ज़्यादातर जी धनवंतरी कास्ट कह लो, ठीक है, रिश्तेदारी दे विच भी पैंदी है धनवंतरी। राइट, तो ज़्यादातर उन्होंने दे जिहड़ा हुंदा ना वो कहंदे हुंदे भी जड़ी बूटियां का काम करदा, गॉड ऑफ मैडिसन। राइट, अज भी तुसीं देखोगे तो एंशियंट टाइम दे विच गॉड ऑफ मैडिसन किन्हां नूं कहा जांदा सी? जिहड़े आयुर्वेदा ते यानी कि आयुर्वेदा ते दवाइयां बनाते हैं। राइट, इसे करके आप कहने धनवंतरी। राइट, धनवंतरी एक योजना भी चली है धनवंतरी, वो इसे करके ही चली है, मैडिकल के नाल रिलेटेड है धनवंतरी। राइट, गॉड ऑफ मैडिसन। सो ये सीगे 50 क्वेश्चन हिस्टरी के। मेरे हिसाब नाल तुहानूं प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए है, तो तुहानूं वधिया लग्या होगा। इस तरीके नाल तुहाडे याद भी बहुत छेती हो जाणगे। कई बार आप बैठे करी जाने MCQ आप ही वो याद नहीं होंगे। राइट, इस तरीके याद रह जाएंगे जो तुम मेरे नाल गल्लां बातां करके वार्तालाप करते हो। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चलो। इस तरीके पढ़ते रहो तो ज़्यादा मैक्सीमम तो मैक्सीमम शेयर करो ताकि तुम जिहड़े भी देख रहे हो वो फायदा चक सको। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। होर नवीं वीडियो मिलते रहेंगे इस तरीके बाय बाय।